ٹیلی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے اعز و اقربا میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، پریشانی کی نوعیت اگرچہ مختلف ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، یا آمدنی میں برکت نہیں، یا جس جائز مقصد میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اگر رکاوٹیں آ جاتی ہوں، یا ہمیں اپنے جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہوں، کاروبار میں برکت نہ ہو، یا اللہ نہ کرے رشتوں میں رکاوٹوں کا سلسلہ ہو، یا نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، تو کسی بھی حوالے سے اگر پریشانی کا سامنا ہے، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسم وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کے بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک تعداد ہوتی ہے نا کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ نمبر ہمارا نہیں مل پا رہا، بار بار کوشش کرتے ہیں، نمبر ہمارا لگتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا نمبر نہیں لگ پا رہا ہو تو نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ میسیجز کر کے بھی روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، لیکن استخارے کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گی، نام اور والدہ کا نام بتانا یہ ضروری ہے۔ تو بذریعہ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ماہ رجب المرجب کی برکتیں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل حاصل کر رہے ہیں، خوش نصیب عاشقان رسول اس ماہ مبارک میں الحمدللہ عز و جل روزے رکھ کر خوب برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفلی روزے رکھنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ آئیے مل کر مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتدا میں ہم بھی وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ دعا ہم پڑھ لیا کریں، سنت کی نیت سے یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ماہ رجب کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جیسے ہی سلسلہ شروع کیا تو ماشاءاللہ میسیجز کی ایک تعداد ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور یہ روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں۔ کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین اولا ہم آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ اجتماع میں جانے کی اجازت مل جائے، اس کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے۔ اجتماع کون سا اجتماع؟ سنت بڑا اجتماع، یا کہیں اگر جیسے جانا ہوتا ہو اجتماع کے اندر، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اجازت نہیں مل پاتی، تو ایسا کوئی وظیفہ ہو کہ وہ وظیفہ پڑھ کر اگر سرپرستوں سے، والدین سے اجازت مانگی جائے تو وہ اجازت دے دیں۔ تو یہاں یہ انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک عملی علاج پہلے میں آپ کو عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین۔ دیکھیں اجتماع میں اگر جانا ہے نا، ہوتا ہے بعض اوقات جیسے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اجازت نہیں مل پاتی، تو اس میں ہم ایسا حسن اخلاق
اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، انداز اپنا بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت ہم بیان کریں، پھر اس اجتماع میں شرکت کے فضائل و برکات ہم بیان کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے اجازت مل جائے گی، اور یہ ہے کہ 41 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا عزیزو یہ پڑھ کر آپ اجازت طلب کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اجازت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ہم کوشش کریں کہ والدین کو پریشان بھی نہ کریں، جو ہمارے سرپرست ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ضد سوار ہو جاتی ہے، تو اس طرح اجازت ملنے میں بھی بعض اوقات یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اچھے انداز میں، احسن انداز میں، پیار محبت شفقت کے ساتھ والدین کو راضی بھی رکھنا ہے، ان کو ناراض بھی نہیں کرنا۔ تو آپ اجازت طلب کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اپنے لیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو نفرت یہ محبت میں بدل جائے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اس میں یہ خیال کر لیا جائے کہ کسی کے دل میں اگر نفرت ہے تو وہ رشتہ کون سا ہے؟ صحیح۔ اگر محارم کا رشتہ ہے تو پھر تو وظیفہ کرنا جائز ہے ان کے لیے۔ معاذ اللہ اگر دیگر معاملات میں اگر وظیفہ کریں گے تو یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے یہ ہے کہ یا ودود ہو جی بعد نماز عصر 101 بار مصری منہ میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، یا ودود 101 بار، اور تصور کریں جس کے دل میں محبت ڈالنی ہے، جس کے دل میں محبت ڈالنی ہے اس کا تصور کریں اور اس کے سینے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ بالفرض اگر ایسی صورت نہیں بن پا رہی کہ سامنے دم کیا جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ فتنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تصور کر لیں، تصور میں دم کرنا ہے۔ جی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجئے گا۔ 1 سال 3 مہینے ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے جادو کا مسئلہ ہے، کوئی بتایا کوئی جگہ ہے کوئی پوری ٹیسٹ کوئی علاج کروایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، برائے مہربانی رہنمائی کی جائے۔ راشد احمد نقی بھی والدہ محترمہ کا نام زیرا خاتون ہے۔ فالج کا اٹیک ہوا تھا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میں احسان بول رہا ہوں، مجھے شوگر ہے اور اس سے میری نظر کمزور ہو چکی ہے، مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں پلیز۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجئے گا۔ محمد حسان آزاد تاری وینگا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں یہ عرض ہے کہ استخارہ کروانے کل گھر کے سامنے سے میرا بائک چوری ہو گیا۔ میرا نام محمد حسان رضا اور والدہ کا نام مسرت جبیل۔ گھر کے سامنے سے بائک چوری ہو گئی، اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج حسان بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں محمد عثمان کا، اور 3.5 سال کا ہو گیا ہے، چلتا نہیں، باتیں نہیں کرتا، اور اس کی امی کا نام ریانہ کوثر ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بچے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عرفان ہے، میں پرانا شریف آباد سے ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں، کسی کے ہاں میرا بیٹا پڑھنے کے لیے رہتا تھا، انہوں نے عملیات کے ذریعے چیزیں گندی کھلائی ہیں، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کے جسم سے نہ موزی خلائی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، نہ بندش، نام ارسلان علی ضیاء، اس کی ماں کا نام نسرین۔ مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں میرا بیٹا کب تک مکمل صحت یاب ہوگا، اس کا مہربانی کر کے روحانی حل لازمی بتائیں۔ کب تک مکمل صحت یاب ہوگا اس کا تو بتا نہیں سکتے، لیکن شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ ہمت رکھیں، استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ عملیات کے معاملات بھی ہیں یا نہیں۔
इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। बाकी जो आपके बच्चे की तबीयत जैसे बिगड़ रही है, बेहतरी की तरफ नहीं आ पा रही, इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताएंगे। आप भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन अपने साथ डायरी और कलम ये ज़रूर रखिएगा पढ़ने के लिए। जो आपको वजीफा बताया जाए तो बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। अच्छा, रूहानी इलाज के हवाले से हमारे एहसान भाई मालूम कर रहे थे कि नज़र कमज़ोर है, तो अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो, बीनाई कमज़ोर हो चुकी हो, तो अब क्या वजीफा पढ़ा जाए, कौन सी दुआ पढ़ी जाए कि बीनाई तेज़ हो? अल्लाह तबारक व तआला हमारे एहसान भाई की नज़र की कमज़ोरी को दूर फरमाए और इनको शिफायाबी अता फरमाए। इनके लिए हर नमाज के बाद या नूरू 10 बार पढ़कर अपनी उंगलियों के पोरों पर दम करके आंखों पे फेर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नज़र की कमज़ोरी दूर होगी। और इसी तरह एक और रूहानी इलाज अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़े, अपने 3 बार पढ़ के अपनी उंगलियों पे दम करके आंखों पे लगा लें। इंशाअल्लाह इससे जो है वो नज़र की कमज़ोरी भी दूर होगी। बल्कि इसका एक और इस अमल का एक और अच्छा अमल ये इसके बदले में कि इंशाअल्लाह काला मोतिया नहीं होगा। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, बिल्कुल अगर जैसे जिसकी आंखों की बीनाई में मसला नहीं है, आंखें भी माशाअल्लाह बेहतर हैं, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकता है। हर एक अमल कर सकता है। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि जिसकी बीनाई कमजोर है फकत वही अमल करे, इसके अलावा कोई दूसरा ना करे। ऐसा नहीं है। इस नियत के साथ अगर ये अमल करें कि पेश की ही हमारी आंखों की रोशनी बेहतर हो जाए, हर एक को करना चाहिए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। हर नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़कर उंगलियों पे दम करके आंखों पे आप फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आंखों की बीमारी तेज होगी। सुरमा ये इस्तेमाल करना भी सुन्नत मुबारका है, तो सुरमा इसमद इस्तेमाल हम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें भी हासिल होंगी। और मजीद मेरा आपको मदनी मशवरा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा। आंखों के अमराज से महफूज रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर फी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं, आप हासिल कीजिए, इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। मेरे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, बता रहे थे कि मसला 3 माह हो चुके हैं और फालिज का अटैक इनको हुआ था ना जी, तो अभी इनकी तबीयत संभल नहीं पा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं आ पा रही। इस्तिखारे के हवाले से इन्होंने कहा था, तो इनके साथ क्या मामला आ रहा है? इस्तिखारा राशिद महमूद भाई का किया है। इसमें बीमारी और नजर बद का इशारा है, कोई अमलियात या असरात का जो है वो कोई इशारा नहीं है। इसके लिए वो इलाज भी करवाएं और उसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ात हासिल करें। और बहुत ही बेहतरीन प्लेटों का कोर्स हमारा इस हवाले से होता है, तो करीबी जो बस्ता हो वहाँ से इसको इनसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफायाबी मैसर आएगी। इसी तरह वजीफा भी अगर फालिज के हवाले से तो वो भी समाअत फरमा लीजिए। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का रिसाला है, अपना किताब है मदनी पंसूरा। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया है, किसी लोहे या स्टील के बर्तन पर आप सूरह ज़िलज़ाल, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह ज़िलज़ाल, आप ज़ाफ़रान या ज़रदई रंग से लिख लें। किसी लोहे या स्टील के बर्तन पर आप ये लिखें सूरह ज़िलज़ाल। अच्छा, इसमें इराब लगाने की हाजत नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश लगाने की हाजत नहीं है, लिखना है बावुज़ू लिखें और ज़बर ज़ेर पेश डालने की भी हाजत नहीं है। सूरह ज़िलज़ाल लिखें, फिर इस बर्तन में पानी डाल कर ये पानी आप फालिज के मरीज को पिलाएं, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी, फालिज का मर्ज जाता रहेगा। अच्छा, इसी तरह एक तो ये वजीफा हुआ, अमल हुआ। दूसरा अमल ये भी है कि किसी लोहे या स्टील के बर्तन पर सूरह ज़िलज़ाल आप लिख लें, लिख कर आप फालिज के मरीज को कहें कि देखे, तो देखने की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फालिज का मर्ज जाता रहे, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। ये अगर वजीफा आपको याद ना हो सका हो तो मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से तलब फरमा सकते हैं। मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये दोनों रूहानी इलाज ये लिखे हुए हैं, ये आप हासिल कीजिए।
दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये किताब दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है। हासिल कीजिए, इस्तेमाल करें और ये वजीफ़ा भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। हमारे हस्सान भाई का मसला था, बता रहे थे कि घर के सामने से बाइक इनकी चोरी हो गई है, तो मिल जाएगी बाइक? क्या इशारा? तो ज़रूर मिलेगी जी। इसके लिए बहुत बेहतरीन वजीफ़ा, और उस वजीफ़े में लिखा यही है कि कामिल यकीन के साथ इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी चोरी हुई चीज, गुम हुई चीज, छिनी हुई चीज इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, वो वजीफा इतना ऐसा वजीफा है, के साथ क्या वजीफा पढ़ा? अब ऐसा वजीफा है कि जिसको आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में भी बड़ा लुत्फ आएगा। अच्छा, और कुछ यूं समझिए कि वो वजीफा इस तरह है कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका विर्द रखें। और जब ये कई मरतबा पढ़ लें तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़ लें बीच में। सही। तो इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि जल्द ही खोई हुई चीज, चोरी हुई चीज इंशाअल्लाह। एक मदनी बहार भी है, सुभान अल्लाह। अभी गुज़िश्ता दिनों कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एक इस्लामी भाई काम करते हैं ना, नमाज का वक्त हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी ये समात फरमाए मदनी बहार, इस वजीफे की बरकत से, ये जो वजीफा आपको बताया मुबल्लिग दावत इस्लामी ने, और ये वजीफा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले बीमार आबिद में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 78 से ज़ायद रूहानी इलाज उसमें मौजूद हैं, एक वजीफा ये भी उसमें लिखा हुआ है, या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम। तो इस वजीफे की मदनी बहार में आपको सुना रहा था कि एक इस्लामी भाई थे, वो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, बाइक अपनी मस्जिद के बाहर खड़ी कर दी उन्होंने और नमाज पढ़ने के लिए चले गए। नमाज पढ़कर वापस जब आए तो देखा कि बाइक नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उनके जो कीमती डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, फाइल थी, वो भी बाइक पर उन्होंने रख दी थी। इसे नमाज के लिए चले गए थे, नमाज पढ़ के आए तो वो फाइल भी उनकी नहीं और बाइक भी मौजूद नहीं थी। परेशान भी हुए, अचानक सदमा तो पहुंचता है ना कि चोरी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बकौल उनके कि मैंने उसी वक्त से ये वजीफा पढ़ना शुरू किया। अभी सिर्फ 2 दिन गुजरे थे कि 2 दिन के बाद मेरी वो गुमशुदा फाइल, जो मेरे बहुत ज्यादा कीमती डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जिसमें वो फाइल भी मिल गई, और तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफे की बरकत से मेरी गुमशुदा बाइक भी मुझे मिली। सुभान अल्लाह। तो बात होती है एतिकाद की। एतिकाद जितना ज्यादा मजबूत होगा, यकीन जितना ज्यादा कामिल होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फवाइद भी हासिल होंगे। अच्छा, अब ये बात भी याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मज़ीद आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से भी गुमशुदा चीजें मिल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर आते हैं इस्लामी भाई, बताते हैं गोल्ड उनका चोरी हो गया था, मिल नहीं रहा था, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल किए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका कीमती सामान उनको मिल गया। इंशाअल्लाह तो ये वजीफा भी आप पढ़ें, तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। उस्मान भाई का मसला था बताने। अच्छा, एक इस्लामी भाई की कौलती उस्मान के हवाले से इस्तिखारा करवा रहे थे, 1.5 साल उम्र है बच्चे की, बातचीत भी नहीं कर पाते, चलते भी नहीं है, तो इसमें इनका इस्तिखारा किया गया, इसमें वक्ती आजमाइश है। अच्छा, कोई ऐसा प्रॉब्लम जैसे अमलियात या जिन्नात इस तरह का नहीं आ रहा इंशाअल्लाह, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह रहमान। इलाज मुस्तकिल जारी रखें इनका जो इलाज करवाना चाह रहे हैं, और उसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से जरूर रब्ता करें। बस औकात जो है ना वो जाने में सुस्ती होती है, असर से मगरिब कैसे पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की वेबसाइट भी है, इसके जरिए भी तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं, बेटे भी तावीज़ात हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे लुकमान नाम बताया था या इरफान नाम बताया? इरफान नाम बताया था कि अमलियात के जरिए इनके बच्चे पर कुछ ऐसा सिलसिला करवा दिया है कि वो तबीयत बेहतरी की तरफ नहीं आता। असल आजकल ये बहुत मामला जो है ना हम जहन में बिठा लेते हैं कि अमलियात हो गया है, कुछ करवा दिया है, बंदिश करवा दी है। तो अभी जो इस्तिखारा हुआ ना इनके साहबजादे का, तो उसमें किसी अमलियात वगैरह का इशारा ऐसा नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। जी, तो या मोमिनु 115 बार पढ़कर पानी पे दम करके इनको पिलाएं, इंशाअल्लाह रहमान जल्द ही शिफायाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। बढ़ते मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद आपके कॉल्स और आपके सवालात की जानिब देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चला
मोहम्मद आदिल चिश्ती। मेरा मसला ये है कि मेरा एक छोटा भाई है 5वें नंबर का जो लापता है। तकरीबन 6 अप्रैल 2015 को लापता हुआ था, तो आज 3 साल हो जाएंगे अगले महीने इसको। तो लिहाजा मुझे इस्तिखारा निकलवाना था कि मेरा भाई आया खैरियत ऑफियत से है और अल्लाह उसको सलामत भी रखे। तो वो आने का इसका कब तक हो जाएगा? मेरी वालिदा का नाम है ताहिरा बेगम, जो मेरा भाई लापता है उसका नाम मोहम्मद अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ भाई, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि जल्द आपके भाई बखैर आफियत और सलामती के साथ आपके घर वापस तशरीफ़ ले आए। इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह सवजल, और वजीफ़ा भी आपको इस हवाले से बताएंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद इस्माइल जवान स्त्री से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पर खटमल बहुत ज्यादा हो गए, इनको बहुत दवाइयाँ डाली, बहुत इसका इलाज किए हैं, तो लेकिन ये जाते नहीं है। तो इसका कोई रूहानी इलाज या कोई आयत करीमा ऐसी हो जिसके पढ़ने से ये चले जाए, तो इसका अमल बताइए। इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरी बीवी के साथ अमलियात किए गए हैं और सख्त बंदिश की गई है। मेरी बीवी का नाम नसरीन नाज और उनकी अम्मी का नाम फैजा मई है। मेहरबानी करके इस्तिखारा करें और रूहानी लाजमी बताएं। शुक्रिया। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है। मेरी वालिदा का नाम रजिया कौसर, मेरा नाम शमसुद्दीन। इस हवाले से मेरा काम थोड़ा सा बहुत स्लो जा रहा है, दुकान का काम है मेरा। और दूसरा ये मसला है कि मुझे मेदे की प्रॉब्लम है, थोड़ा इस्तिखारा भी कर दे और मुझे इसका मेदे का प्रॉब्लम का कोई मसला बता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम सफदत अली है, मां का नाम साबिया बीबी। मैं बीमार हाँ, मेरे को चलन नहीं होता, साथ चढ़ जाता, लड़ाई झगड़े हैं घर बहुत। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं और इस्तिखारा भी आपका अभी करवाते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। तनवीर हुसैन, वालिदा का नाम अकनील फातिमा, पाकपतन से बात कर रहा हूँ। मोहरे में तकलीफ रहती है और कारोबार करने की नियत कर रहा हूँ, क्या चलेगा या नहीं चलेगा? अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। मोहरों की तकलीफ का आपने बताया ना, इस हवाले से भी रूहानी इलाज इंशाअल्लाह ज़वजल आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। जमीर अमन शेख, वजीर बानो। सर 15 साल हो गए शादी को, औलाद भी नहीं हो रही। अल्लाह पाक ने एक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़वजल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम समीउल्लाह है और मेरी वालिदा का नाम मुख्तार बेगम है। और मेरा इस्तिखारा ये है करवाना है कि तकरीबन 4 साल हो गए मेरी शादी में रुकावट है ना, रिश्ता भेजा था, उसके बाद मसले आना शुरू हो गए, तो पता नहीं चल रहा आगे क्या होना है क्या नहीं होना। बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमा दे इस्तिखारा करके। इंशाअल्लाह सवजल समीउल्लाह भाई इस्तिखारा भी करवाते हैं, रूहानी इलाज इंशाअल्लाह सवजल वो भी आपको बताएंगे। और हमारे मदनी चैनल के वो नाज़रीन कि जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। रूहानी इलाज क्या है अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे। जल्दी जल्दी अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिएगा, जो वजीफ़ा आपको बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा। रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी हमारे, ये एक इस्लामी भाई थे हमारे, बता रहे हैं कि शादी को 15 साल हो चुके हैं ना, तो औलाद का सिलसिला नहीं है, तो दुआ भी फरमा दीजिए। कोई ऐसा वजीफ़ा हो तो वो भी इरशाद फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इनको औलाद नरीना अता फरमाए। बहुत ही प्यारा रिसाला में अहले सुन्नत का, जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी। इसमें अमीर अहले सुन्नत ने बेटी के फजाइल लिखे हैं और माँ 40 रूहानी इलाज भी बेटी के फजाइल पर मुश्तमिल ये रिसाला है, जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी। इसमें अमीर सुन्नत बे औलादी का इलाज लिखते हैं कि हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी मदनी काफिले में सफर करके दुआ करें आप। तावीदाती अत्तारिया भी इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तावीदाती अत्तारिया की एक बरकत, एक मदनी बहार में आपको सुनाऊं कि एक इस्लामी भाई थे, उनके बताया था कि शादी को 16 साल हो चुके थे
औलाद की नेमत से महरूम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उन्होंने ताबीरात अत्तारिया इस्तेमाल किए। अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल करम हुआ और औलाद की नेमत नसीब हो गई। तो आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ ताबीरात अत्तारिया हासिल कीजिए, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। और ज़हे नसीब मदनी काफिले में सफ़र करके दुआ करें, आशिकाने रसूल के कुर्ब की बरकतें मिलेंगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, ये मालूम कर रहे थे कि मोहरों में अगर किसी की तकलीफ रहती हो, दर्द रहता हो, तो क्या वजीफा पढ़ के दम किया जाए? अल्लाह तबारक व तआला इनको भी शिफायाबी अता फरमाए, इनकी तमाम बीमारियों को दूर फरमाए। अमीर सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, उसमें ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है कि फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान, फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान 41 बार 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ें। इंशाअल्लाह मोरों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें यह ख्याल रखिएगा कि जब भी सूरह फातिहा पढ़ें तो उससे पहले हर बार सूरह फातिहा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। सही। तो 41 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। सही। और हर बार सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी और फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान ही अमल। सही। मजीद अगर इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीरात अत्तारिया के बस्तों पर भी ताबीरात दिए जाते हैं, तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं। जिनके मोहरों में दर्द रहता हो, तकलीफ रहती हो, तो ताबीरात अत्तारिया के बस्तों पर इस हवाले से भी ताबीरात दिए जाते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। घर में अगर खटमल हो चुके हों, तो इस हवाले से हमारे एक इस्लामी भाई ने मालूम किया था, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी पंसूरा में इस हवाले से एक अमल वो तहरीर फरमाया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि जिनके घरों में या होता है ना बाद औक़ात किसी एक कमरे में खटमल हो जाते हैं, तो इस हवाले से एक अमल समाअत फरमा लीजिए कि पलंग के पाइंती की जानिब अजवाइन, ये एक देसी दवा है, इसकी पोटलियां बांधने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खटमल भाग जाएंगे। ये रूहानी इलाज नहीं है, ये एक इलाज है, अमल है। ये अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने ये मदनी पंसूरा, ये मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमा सकते हैं। इसमें ये अमल लिखा हुआ है कि अगर किसी के घर में खटमल हो चुके हों तो वो इसके मुताबिक अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर के खटमल ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी सफाई सुथराई का भी एहतमाम रखना चाहिए, धूप का भी सिलसिला रखना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। इस्तिखारों के हवाले से भी कौल थी, हमारे आदिल भाई की कौल थी। भाई के हवाले से उन्होंने कहा था कि तकरीबन 2-3 साल हो गए, 6 अप्रैल का बताया था 2015 में भाई गए थे, अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। तो दुआ भी फरमा दीजिए। इस्तिखारा आपने फरमाया, तो क्या इशारा आ रहा है इस्तिखारे में? तो ये कि इंशाअल्लाह रहमान आफियत से ही है और यानी खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला और आसानियाँ इनके लिए अता फरमाए। और इसके हवाले से मदनी पंसूरे में सफ़ा नंबर 223 पर सूरतुद दुहा वाला ये अमल है, ववजदका ضالًا फहदा। इसको तकरीबन कमोबेश पढ़ेंगे और पढ़कर घर के कोने में या किसी साहिब मज़ार, इसका ये तो अमल है ना मदनी पंसूरा में। मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तहरीर फरमाया, इशा की नमाज के बाद 41 बार 41 टाइम्स 41 बार सूरह वद्दुहा ये पढ़ें और पढ़कर घर के जो आपके 4 कोने हैं ना, उन 4 कोनों में से 2 कोनों में अजान और 2 कोनों में तकबीर कहनी है। और फिर आप भाई की वापसी के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई आपके बखैर आफियत वापस आ जाएंगे। ये वजीफा अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो मदनी पंसूरा ये मकतबतुल मदीना से तलब फरमा सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें ये वजीफा मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ताबीरात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। कुछ मखसूस इसके ताबीरात दिए जाते हैं, जैसे घर से अगर कोई गायब हो जाए, घर से लापता हो जाए, कोई वापस ना आया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीरात अत्तारिया से हवाले से मखसूस ताबीरात दिए जाते हैं, तो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके भाई वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अच्छा, हमारे एक और इस्लामी भाई की कौल थी, वो अपने घर वालों के हवाले से बता रहे थे कि किसी ने अमलियात करा दी है, बंदिश वगैरह करवा दी है, क्या इनके साथ मामला है? इनका इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में कुछ असरात का इशारा आ रहा है। सही। तो इसके हवाले से या कहारू 100 मरतबा जो है वो पढ़कर पानी पे दम करके इसको पिए, इंशाअल्लाह रहमान जल्द इस असरात वगैरह से जो है निजात मिलेगी। सही। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि एक तो काम स्लो चल रहा है और मैदे की भी प्रॉब्लम है इनके साथ। हाँ, रोजगार के हवाले से भी इन्होंने कहा था, तो रोजगार में तो ये कि नजर का इशारा है, लेकिन अगर ये अपनी दुकान अपने मकान में एक काम ये कर लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार लिख कर उसका एक तावीज़ बनाकर जो है उसको अपनी दुकान में लगा लें, इंशाअल्लाह रहमान ये अमल करेंगे तो बाकायदा जहाँ पर ये अमल लिखा है वहाँ लिखा हुआ है कि जिसने ये अमल करेगा इंशाअल्लाह उसका कारोबार खूब चमकेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, ये सफदर नाम इन्होंने बताया था कि बीमारी के भी मामलात हैं, घर में थोड़े लड़ाई झगड़े के भी सिलसिला है, तो घर अमन और सुकून का गहवारा बने, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, बीमारियां भी दूर हों, तो इस हवाले से इस्तिखारा आपने फरमाया। इस्तिखारे में इनके भी कुछ असरात का इशारा आ रहा है। अच्छा, सही। तो इनके लिए कोशिश ये करें कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर जाएं तो वहाँ एक मखसूस तावीज़ जो है वो घर में लटकाने के लिए दिया जाता है, तो उसको हासिल करें और वो अपने घर में आके इसको लटकाएं। कुछ औरादो वज़ाइफ और काट का भी इंशाअल्लाह रहमान अमल बताया जाएगा, तो इंशाअल्लाह रहमान इनके ये असरात से भी जान छूटेगी, घर अमन का गहवारा भी बनेगा, और साथ साथ अगर या वदूदो वाला अमल अभी जो हमारे मुबल्लिग ने जो है वो दोहराया, तो इसको भी अमल कर लें कि ये 1001 मरतबा या वदूदो पढ़कर अगर नमक पर दम कर लें, जुम्मा वाले दिन इसको पढ़ें और 1001 मरतबा पढ़कर नमक पर दम कर लें, और वो नमक जो है वो घर के नमक कौन सा होना चाहिए? नमक तो कोई सा भी नमक हो, लाहौरी नमक हो तो बहुत, लाहौरी नमक हो, सही, लाहौरी नमक हो, और उस लाहौरी नमक को घर के बर्तन में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल दीजिए और वही उसी खाने में इस्तेमाल करें, तो इससे ये भी नहीं हुआ कि कोई मखसूस कोई किसी ने कोई अमल किया है। इंशाअल्लाह रहमान आफियत होगी और बहुत ज्यादा मोहब्बतें बढ़ेंगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह समझ। बाकी देखिए, रूहानी इलाज पर भी अमल करें, साथ साथ ये भी अर्ज करता चलूं मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की कोशिश करें, अफ़्व दरगुज़र का मामला हम ये इख्तियार करें, मुआफ़ करने की आदत बनाएं और बर्दाश्त करने की आदत बनाएं, सब्र करने की आदत बनाए। अगर खिलाफ मिजाज कोई बात हो भी जाए, मामला ऐसा हो भी जाए, तो हम गुस्सा करने के बजाय सब्र से काम लें, अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए मुआफ़ कर दें। अब देखिए, लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी, गुस्सा करना छोड़ दें, लड़ाई झगड़ों की नौबत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बाकी ये जो आपको वजीफा बताया गया या वदूद वाला अमल, बहुत ये मुबारक अमल है, इसकी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बरकतें नजर आती हैं और देखी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। अगर अभी आपको ये वजीफा याद ना हो सका हो तो तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल प्रिंट शुदा वजीफा भी आपको बआसानी मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, देखें हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करके दुआएं करें, आशिकाने रसूल की कुर्ब की बरकतें मिलेंगी, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती मुसाफिर की दुआ, और राह खुदा अज़्ज़वजल का मुसाफिर हो तो बदरजा औला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल से बरकतें हासिल होती हैं। मदनी काफिले में सफर करें, अल्लाह पाक की रहमत से गैबी तौर पर असबाब बनते चले जाएंगे, गैबी तौर पर मदद होगी, अल्लाह पाक की रहमत से हमारे मददगार पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बढ़ते हैं मज़ीद आपके कुछ सवालात और रूहानी इलाज की जानिब, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिए। हरकुन्निसा के दर्द का रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको अभी बताते हैं, मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। अगर किसी के चेहरे पर दाने हो जाएं तो उसका रूहानी इलाज बता दीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद अगर सवालात हों तो वो भी चला दीजिए। अगर किसी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो इसका रूहानी इलाज क्या है? इंशाअल्लाह मज़ीद कैंसर से बचने के लिए रूहानी इलाज बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, और जो मुसलमान इस तरह के मूसी अमराज में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमत से तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाए। जी, इल्कुन निसा के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला इनको इल्कुन निसा के दर्द से शिफायाबी अता फरमाए।
वाकई बहुत आजमाइश होती है, दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। मुसीबत पर सब्र भी करें, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत पर सब्र करने का सवाब अता फरमाएगा। हदीस पाक में एक हदीस पाक का एक मफहूम मजमून एक जहन में आ रहा था कि जिसके माल या जान में मुसीबत पहुंची जी और उसने उसको छुपाए रखा और लोगों से शिकायत नहीं की, सही, तो अल्लाह ताला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफायाबी अता फरमाए। इनको चाहिए कि घरेलू इलाज, हमें अहले सुन्नत का तहरीर करदा एक रिसाला है जी, उसमें हमें अहले सुन्नत ने घरेलू इस इरकुन निसा के दर्द के हवाले से लिखा है कि जैतून का तेल लेकर 55 बार 55 टाइम्स उसके ऊपर दम करके दर्द की जगह पर लगाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे फायदा होगा, दर्द में इफ़ाक़ा होगा। या सलामू चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी फायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, चेहरे पर अगर किसी के दाने हो जाएं, चेहरे पर दाने हो जाएं तो क्या वजीफा पढ़ें? कुरान पाक की तिलावत करें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से, उसकी तिलावत की बरकत से इंशाअल्लाह चेहरे पर दाने दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह नूर ही नूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और साथ साथ ये वजीफा अगर चाहे तो या रकीबू जी, या रकीबू 100 बार रोजाना अपने हाथों पर दम करके 3 मरतबा, सही 3 मरतबा अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर फेर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चेहरे पर दाने इंशाअल्लाह नहीं होंगे। सही। अच्छा, कैंसर के हवाले से मालूम कर रहे थे कि अगर किसी को कैंसर हो चुका हो, जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो क्या वजीफा पढ़ा जाए कि कैंसर जैसे मूधी मर्ज से नजात हासिल हो? अल्लाह तबारक व तआला इनको कैंसर की बीमारी से शिफायाबी अता फरमाए। चल रहा है समझे। अच्छा, हम अगर दावत इस्लामी के जहाँ मदरसा बालगान होते हैं वहाँ शिरकत करें तो वहाँ ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत होती है। अच्छा। उस सूरह मुल्क की एक आयत ऐसी है जिसमें कैंसर का इलाज। अच्छा, सूरह मुल्क की आयत नंबर 14 है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। इसको 2022 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके जो इसको पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह कैंसर के मरीज को शिफा मिलेगी। 2022 मदानी चैनल के नाज़रीन तादाद नोट फरमा लीजिए, 2022 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़नी है। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, व हुवल लतीफुल खबीर, ये पढ़ना है जी। तो ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह सवजल फायदा हासिल होगा। तो ये कहाँ लिखा है ये वजीफा? बीमार आबिद, ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन आप तलब फरमा सकते हैं, इंशाअल्लाह सवजल फायदा हासिल होगा। अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो ये रिसाला मकतबतुल मदीना से तलब फरमा लीजिए, इस्तेमाल कीजिए और ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह सवजल देखें बहुत फायदा हासिल होगा। मज़ीद तावीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा। और जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, मदनी चैनल के नाज़रीन एक मदनी मशवरा भी देता चलूं, या आपके कोई ऐसे जानने वाले हैं कि जो कैंसर जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल तावीदात अत्तारिया के बस्तों पर प्लेटों का एक मखसूस अमल किया जाता है। 40 दिन का ये कोर्स होता है। पिछले दिनों इस हवाले से एक मदनी बहार अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आई थी। हमारे तावीदात अत्तारिया के बस्ते पर एक इस्लामी भाई आए और गले का कैंसर था उनको ना, और बाकायदा उनकी रिपोर्टों में भी आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस उम्मीद पर वो आए थे कि यहाँ से तावीदात अत्तारिया के बस्तों से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल फ़ायदा हासिल होता है। उन्होंने एक कोर्स पूरा किया था, उसके बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाए। जब रिपोर्टें आई तो वो खुद भी हैरान थे, मज़ीद डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे ये कम हो गया। तो आप भी तावीदात अत्तारिया के बस्ते से राबता करके आप प्लेटों का ये मखसूस अमल होता है, 40 दिन का कोर्स होता है, ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ज़वजल देखें आपका ये मर्ज भी जाता रहेगा। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मजीद मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी कुछ कॉल्स और वीडियो सवालात भी हैं, वो सिलसिले में शामिल करते हैं। देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी, दुकान में आग ना लगे इसका कोई वजीफा बता दें। दुकान में आग ना लगे इस हवाले से वजीफा आपको बताएंगे, लेकिन ये वजीफा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बानी हम सुनते हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी गुलदस्ता मुलाहजा कीजिए।
अस्माए असहाब कहफ लिख कर दुकान में लगा दिया, किसी कागज पे लिख लिया, फ्रेम करा के लगा दिया, तो इंशाल्लाह आग से, चोरी से वगैरह आफतों से दुकान जो है, मकान है, ये महफूज रहेंगे, जिन्नात की शरारत से महफूज रहेंगे। तो ये इनके 7 नाम है असहाब कहफ। सूरह कहफ कुरान करीम में तो तफसीरों में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए, तो 7 नाम है, और एक इनका साथ में कुत्ता भी था जिसका नाम था कितमीर। तो ये नाम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। दावत इस्लामी के तावीज़ात के बस्ते से भी ये इन नाम का तावीज़ मिलता है। पहनने से भी जिन से और जादू से और इस तरह की चीजों से नजात मिलती है और हिफाजत होती है, नजर से हिफाजत होती है। बहुत इसके फवायद है, बुजुर्गों ने लिखे। ये औलिया किराम थे, ये दकियानूस बादशाह के दौर के। आखिर में कितमीर ये इनका कुत्ता था। ये कुत्ते की भी खूब शान है, इसके बारे में भी अक़वाल है कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। औलिया किराम की सोहबत के फवाइद तो देखो, कुत्ता जन्नत में जाएगा, अल्लाह की शान। तो ये घर में लगाएं, दुकान में लगाएं, इंशाअल्लाह आग से और दीगर आफात से हिफाजत होगी। अल्लाह सब औलिया कराम रहीमहुमुल्लाह सलाम के नामों की अल्हम्दुलिल्लाह सब ये बरकतें हैं कि जहाँ पर ये मुबारक नाम लगा दिए जाएं, लिख कर लगा दिए जाएं, या प्लास्टिक कोटिंग करके किसी सादे कागज पर लिख कर प्लास्टिक कोटिंग करके लगा दिए जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब दुकान मकान की हिफाजत रहेगी और आग भी नहीं लगेगी। तो ये तावीज़ भी आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। मैसेजेस मदनी चैनल के नाज़रीन काफ़ी सारे आपके मौसूल हुए हैं, चंद मैसेजेस आपके हम सिलसिले में शामिल करते हैं। ये मालूम कर रहे हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसके बारे में कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह सवजल पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि मेरे बाल नहीं झड़ें और मेरे बाल बड़े हो जाएं। तो सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर 41 बार सूरतुल लैल, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुल लैल, ये पढ़कर दम कर दीजिए और रात को सोने से पहले ये दम किया हुआ तेल सर में इस एहतियात से लगाएं कि जमीन पर ना गिरे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। गला खराब है, बलगम बहुत ज्यादा आता है, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर पानी पे दम करके पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ गला सही हो जाएगा। मेरी स्कूल की स्लिप नहीं मिल पा रही, कोई वजीफा बता दीजिए कि मेरी स्कूल की स्लिप मिल जाए। तो जहां से गुम हुई है वहां 1 मरतबा सूरत तारिक की आप तिलावत कर लीजिए। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कसरत के साथ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ गुमशुदा शे आपकी मिल जाएगी। अच्छा, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफ़र करके दुआएं करें, इंशाअल्लाह सवजल करम होगा, परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हो आबाद कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या